In this lecture, I am going to start with the third unit of physical pharmaceutics second, that is coarse dispersion. In coarse dispersion, you have to study about suspension and emulsion. So I am starting with suspension. In this, you have to study about the general introduction of suspension, interfacial properties of suspended particles, settling in suspensions, and formulation of flocculated and deflocculated suspensions. Here I have mentioned some questions which have been asked in previous years. After discussing this unit, I will discuss these questions also. So I'm starting with the suspension. A pharmaceutical suspension is a coarse dispersion in which insoluble solid particles are dispersed in a liquid medium. आपने फर्स्ट यूनिट में जब कोलाइडल डिस्पर्जन पढ़ा था वहां पे जनरल इंट्रोडक्शन दिया था मैंने डिस्पर्जन सिस्टम के बारे में. व्हाट इज डिस्पर्जन सिस्टम? डिस्पर्जन सिस्टम इज particles of one phase are dispersed uniformly in another phase. डिस्पर्जन सिस्टम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था: मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कोलाइडल डिस्पर्जन एंड कोर्स डिस्पर्जन. कोलाइडल डिस्पर्जन हम ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं. कोर्स डिस्पर्जन मतलब वो डिस्पर्जन मीडियम, वो डिस्पर्जन सिस्टम जहां पे डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स का साइज किस रेंज में होता है? कोर्स रेंज में होता है, लार्जर साइज के पार्टिकल्स होते हैं. फिर तो फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन किस कैटेगरी में आता है? कोर्स डिस्पर्जन की कैटेगरी में आता है, जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड मीडियम में यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड फॉर्म में रहते हैं. The particles have diameters for the most part greater than 0.1 micrometer, and some of the particles are observed under the microscope to exhibit Brownian movement if the dispersion has a low viscosity. Brownian movement किसकी टेंडेंसी होती है, किसकी प्रॉपर्टी होती है? कोलाइडल पार्टिकल्स की. तो जब सस्पेंशन के केस में डिस्पर्स पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉलर साइज के होते हैं, उस केस में ब्राउनियन मूवमेंट भी शो कर सकते हैं. Now the reasons for suspension, why we prepare pharmaceutical suspension. First reason is certain drugs are chemically unstable when in solution but stable when suspended. ये कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो किसी और फॉर्म में अनस्टेबल होते हैं, केमिकली अनस्टेबल होते हैं, लेकिन जब उनको सस्पेंशन फॉर्म में फॉर्मुलेट किया जाता है तो वो कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं. Many patients prefer liquid form than solid forms for swallowing because it is convenient to swallow. Next is convenience in administration. Next, safety and convenience of liquid doses for infants and children. Disagreeable taste of certain drugs when given in solution is negligible when the drug is administered as undissolved particles of a suspension as chloramphenicol. क्लोरमफेनिकॉल सस्पेंशन का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि क्लोरमफेनिकॉल का जब सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसका बिटर टेस्ट होता है, इसको मास्क करने के लिए इसको सस्पेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. नाउ द डिजायरेबल और आइडियल फीचर्स ऑफ ए सस्पेंशन. इन एडिशन to therapeutic efficacy and stability, other features apply specifically to the suspensions are, कोई भी formulation जब हम बनाते हैं तो उसका जो first consideration है that is its therapeutic efficacy and stability. Therapeutic efficacy और stability के अलावा specifically suspension doses form के लिए और क्या क्या ideal features होने चाहिए. First one is a properly prepared suspension should settle slowly and remain homogeneous for at least the period between shaking the container and removing the required dose. जो prepared suspension है उसमें settling बहुत slow होना चाहिए ताकि वो homogeneously रहे. फिर एटलीस्ट तब तक जब तक कि उसको शेक कर रहे हैं कंटेनर को और शेक करने के बाद में जो रिक्वायर्ड डोज है उसको रिमूव नहीं कर लेते. नेक्स्ट इज द सेडिमेंट प्रोड्यूस्ड ऑन स्टोरेज शुड बी रेडिली डिस्पर्स्ड अपॉन जेंटल शेकिंग ऑफ द कंटेनर. जब भी कंटेनर को शेक करते हैं तो जो भी सेटल्ड पार्टिकल्स हैं वो इजीली रीडिस्पर्स हो जाना चाहिए. द पार्टिकल साइज ऑफ द सस्पेंडेड ड्रग शुड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट लॉन्ग पीरियड्स एंड डू नॉट शो क्रिस्टल ग्रोथ. क्रिस्टल ग्रोथ ना हो और जो पार्टिकल का साइज है वो यूनिफॉर्म रहे. द सस्पेंशन विस्कोसिटी मस्ट नॉट बी वेरी हाई and it should be poured easily from its container.
विस्कोसिटी, थिक्सोट्रॉपी इतनी हो, कंसिस्टेंसी सस्पेंशन की बहुत ज्यादा ना हो। ज्यादा विस्कोसिटी पे क्या होगा कि जो फॉर्मुलेशन है उसको इजिली कंटेनर से पोर नहीं किया जा सकेगा। ये नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ सस्पेंशन। Suspension has been classified on the basis of different phenomena. First classification is based on general classes. First category on the basis of general classes is orally administered mixture, externally applied lotions and injectable preparations. On the basis of proportion of solid particles, it can be classified as dilute suspension and concentrated suspension. Next, based on the साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन में, उनके साइज के बेसिस पे सस्पेंशन को कोलॉइडल सस्पेंशन, कोर्स सस्पेंशन और नैनो सस्पेंशन में कैटेगराइज कर सकते हैं। नाउ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, डिफरेंट इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सस्पेंशन को डिफ्लॉकुलेटेड और फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में क्लासिफाई किया गया है। ये क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है सस्पेंशन की यहाँ पे, और फ्लॉकुलेटेड डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन का प्रिपरेशन भी पढ़ना है। सो नाउ कम टू द डिफरेंस बिटवीन फ्लॉकुलेटेड एंड डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। First classification between flocculated and deflocculated suspension is on the basis of sedimented particles. In flocculated suspension, it forms a network-like structure, while in case of deflocculated suspension, particles are separated individually. Velocity of sedimentation in case of flocculated suspension is fast and the particles fall together, while in case of deflocculated suspension, it is slow and fall according to size range. डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के केस में डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होंगे, वो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग, अपने साइज के अकॉर्डिंग ही फॉल होंगे। नेक्स्ट इज बाउंड्री। A distinct boundary between sediment and supernatant is found, while no distinct boundary between sediment and supernatant in case of deflocculated suspension. फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के केस में सुपरनेटेंट और सेडिमेंट के बीच में एक क्लियर विजिबल बाउंड्री होगी, जो कि डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के केस में विजिबल नहीं होगी। फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के केस में फ्लॉक्यूल्स एक साथ फॉल करते हैं, वेलोसिटी फास्ट होती है, इसीलिए सुपरनेटेंट कैसा होगा, क्लियर होगा। व्हाइल इन केस ऑफ डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, सुपरनेटेंट विल बी टर्बिड। फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के केस में अपीयरेंस प्लीजिंग नहीं होगी क्योंकि सुपरनेटेंट क्लियर होता है, while in case of deflocculated suspension it will be pleasing in appearance. Viscosity of flocculated suspension is high and the viscosity of deflocculated suspension is low. Rheology of flocculated suspension is plastic and pseudoplastic, while the rheology of deflocculated suspension is dilating. It follows dilating rheology. Sediments are loosely packed and doesn't form a cake in case of flocculated suspension, which is a desirable property of a pharmaceutical suspension, while the sediment is closely packed and form a hard cake in case of deflocculated suspension. Redispersibility in case of flocculated suspension is easy, while in case of deflocculated suspension is difficult. This is the difference between flocculated and deflocculated suspension. Now come to the interfacial properties of suspended particles. Suspended particles पे जो surface charges होते हैं, जो surface phenomena होता है, उसकी वजह से कुछ interfacial properties होती है, उन कुछ electrical properties होती है, जिन properties की वजह से suspension stable या unstable हो सकता है. In pharmaceutical suspensions, the solid phase remains as finely divided particles in the dispersion medium. Therefore, a large amount of interface is involved in the formation, which in turn affects the stability of suspension preparations. सस्पेंशन के केस में, फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन के केस में जो सॉलिड डिस्पर्स सॉलिड फेज होती है वो बहुत ही फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होती है। इसके पार्टिकल्स का साइज बहुत ही फाइन होने की वजह से सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, जितना ज्यादा पार्टिकल साइज रिड्यूस करेंगे सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से जो सरफेस एरिया है वो क्या करता है, सस्पेंशन के स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है।
The two most important interfacial properties include surface free energy and surface potential. दो important interfacial properties जो suspension exhibit करता है वो है surface free energy और surface potential. Now come to the surface free energy. A large surface area offered by finely divided solid materials is typically associated with large amount of free energy on the surface. ज्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से जितनी ज्यादा सरफेस होगी उतनी ज्यादा सरफेस फ्री एनर्जी होगी. सस्पेंडेड पार्टिकल्स के सरफेस पे सरफेस एरिया सरफेस एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है. द रिलेशन बिटवीन द सरफेस फ्री एनर्जी एंड द सरफेस एरिया कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय डेल्टा जी इक्वल्स टू गामा SL into delta A. Delta G is increase in surface free energy due to increase in delta A surface area. Gamma SL is interfacial tension between the solid particles and the dispersion medium. तो यहाँ इस इक्वेशन की हेल्प से आप देख सकते हो कि सरफेस एरिया में जितना ज्यादा इंक्रीज होगा सरफेस फ्री एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी. और सरफेस एरिया में इंक्रीज कब होगा? जब पार्टिकल का साइज जितना ज्यादा रिड्यूस किया जाएगा. क्लियर? The smaller the delta G is, the more thermodynamically stable is the suspension. किसी भी फॉर्मुलेशन की एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा. उसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा और खुद को स्टेबलाइज करने के लिए किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा. क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी भी इसकी जो सरफेस फ्री एनर्जी है वो जितनी कम होगी वो सस्पेंशन उतना ही ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा. क्लियर? दिस कंडीशन कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय, अब सरफेस फ्री एनर्जी अगर कम रखनी है तो क्या क्या कर सकते हैं? सरफेस फ्री एनर्जी की फॉर्मूला में आपने देखा दो टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे थे, इंटरफेशियल टेंशन और सरफेस फ्री एनर्जी. ठीक है, तो उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? या तो सरफेस एरिया को कम रखें, सरफेस एरिया में जो इंक्रीज हो रहा है उसको कम रखें, या फिर इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस कर दे. क्लियर? तो ये दोनों फिनोमेना कैसे पॉसिबल है? रिडक्शन ऑफ इंटरफेशियल टेंशन. इंटरफेशियल टेंशन रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? सर्फेक्टेंट ऐड करते हैं. कि सर्फेक्टेंट कैसा है? एम्फिफिलिक इन नेचर है, वो दोनों फेजेस के साथ बाउंड होकर के दोनों के इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस कर देता है. नेक्स्ट कंडीशन इज डिक्रीज ऑफ द इंटरफेशियल एरिया. इंटरफेशियल एरिया को डिक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? लीडिंग टू फ्लॉकुलेशन विच इज डिजायरेबल और एग्रीगेशन विच इज अनडिजायरेबल. ठीक है, एग्रीगेशन मतलब होता है जहां पे डेंसर एग्रीगेट्स बनते हैं, डेंसर क्लम्प्स बन जाते हैं जिनका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ज्यादा होगा और जो हार्ड केक फॉर्म कर लेंगे. हमें क्या चाहिए? फॉर्मुलेशन कैसे चाहिए? फ्लॉकुलेटेड चाहिए जो डिजायरेबल है. तो इसके लिए क्या करते हैं? फ्लॉकुलेटिंग एजेंट्स ऐड करते हैं टू स्टेबलाइज द फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन. नेक्स्ट सरफेस प्रॉपर्टीज, interfacial properties, surface potential or electrical properties. Surface potential exists when dispersed solid particles in a suspension possess charge in relation to their surrounding liquid medium. जो dispersed phase के particles होते हैं, जब उन पे कोई surface charges create होते हैं liquid medium की वजह से, उसकी वजह से electrical properties generate होती है. Particles, suspended particles different electrical phenomena show करते हैं. The forces acting on the surface of the suspended particles also affect the degree of flocculation in a suspension. जो forces act कर रहे हैं suspended particles के surface पे वो भी उनके degree of flocculation को affect करते हैं. Forces of attraction arise from van der Waals forces results in potential energy of attraction. जो surface पे van der Waals forces, forces of attraction है वो van der Waals forces की वजह से है. इसकी वजह से एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन रिजल्ट आउट होती है. फोर्सेस ऑफ रिपल्शन अराइज फ्रॉम इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर सराउंडिंग ईच पार्टिकल. फोर्सेस ऑफ रिपल्शन किस वजह से है? जो हर पार्टिकल के अराउंड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन रही है उसके इंटरैक्शन की वजह से है, विच रिजल्ट्स इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिपल्शन. क्लियर? तो यहाँ पे दो तरह की पोटेंशियल एनर्जीज हो रही है, एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिपल्शन. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से अराइज हो रही है? van der Waals फोर्सेस की वजह से, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिपल्शन रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से. वो रिपल्सिव फोर्सेस कौन से हैं? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर अराउंड ईच पार्टिकल. क्लियर? नाउ टू कंडीशन अराइज.
फर्स्ट वन इज कंडीशन ऑफ डिफ्लॉकुलेशन. डिफ्लॉकुलेशन कब होता है? व्हेन रिपल्सिव एनर्जी इज हाई. जब रिपल्सिव एनर्जी हाई होगी वो कंडीशन कैसी होगी? डिफ्लॉकुलेशन की कंडीशन होगी. तभी पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे और फ्लॉक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगे. पार्टिकल्स रिमेन डिफ्लॉकुलेटेड, इवेंचुअली सेटलिंग, क्लोजली पैक्ड. Primary minimum as a result experience attractive forces, then hard cake form and high energy is required for redispersibility. डिफ्लॉकुलेशन की कंडीशन में क्या होता है कि इनिशियली तो रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, डिफ्लॉकुलेटेड होते हैं, लेकिन एक बार जब सेटलिंग स्टार्ट हो जाती है तो सेटलिंग स्टार्ट होने पे क्या होगा? पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोजली आएंगे. वो कंडीशन कैसी होगी? यहाँ ग्राफ में आप देख सकते हैं प्राइमरी मिनिमम की कंडीशन होगी. ये जो कंडीशन है ये प्राइमरी मिनिमम की कंडीशन है यहाँ पे जब डिफ्लॉकुलेट पार्टिकल सेटल होना स्टार्ट हुए. प्राइमरी मिनिमम के बाद क्या होगा? जब पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हो गए हैं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत नियर अरेंज्ड है. तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने पे क्या होगा? हार्ड केक का फॉर्मेशन होगा और इतना हार्ड केक फॉर्म हो जाएगा कि उसको डिस्पर्स करने के लिए बहुत ही हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. नेक्स्ट कंडीशन होगी कंडीशन ऑफ फ्लॉकुलेशन. फ्लॉकुलेशन के केस में लूजली स्ट्रक्चर्ड फ्लॉक्यूल्स होंगे विच इज द कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमम. यहाँ पे ये एनर्जी कर्व आप देख सकते हो, फोर्स एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन और एनर्जी ऑफ रिपल्सन के लिए ये ग्राफ बना हुआ है. इसमें आप प्राइमरी मिनिमम और सेकेंडरी मिनिमम का की कंडीशन देख सकते हो. डिफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के केस में प्राइमरी मिनिमम होगा और सेकेंड फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के केस में यहाँ पे सेकेंडरी मिनिमम होगा. दिस कर्व शोज द एनर्जी कर्व फॉर फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन. दिस इज द कर्व फॉर repulsion curve. This is attraction curve. Yeah. So these are the surface energy, surface interfacial properties for suspension. Yeah. In next class we will discuss about the settling in suspension. Thank you.